We're getting in the latest images from the national capital in Hauzkhas, where the doctors are essentially paying tribute at the COVID heroes. This is the images that are coming in from Hauzkhas area and being covered by my colleague Shantashri. Well, Shaman, yes, we are standing at the Hauzkhas police station where we see that a team of doctors who are from AIIMS as well as Safdarjung and also other nursing department have actually gathered over here, and it is a kind of a showing of gratitude which is being shown to the police officers where they are having a exchange of words where not only police officials are appreciating the constant hard work being put in by doctors day and night in order to cure the COVID-19 patients along with handling other patients. Also, the doctors over here are saying that you are the savior of a lot of people out there. You are upholding the law and order, and of course maintaining that strict lockdown is in force, and that's why they have come over here with some flower petals over here which they will strew it upon the police officials out here, and police officials in gesture to them, they will be sending out some food packets, along with that some other vote of thanks packets to these doctors in exchange of that. So this is for the very first time we see that this kind of exchange is taking place, which is very motivating, which is at the end of the day very important in this country to take place. Tomorrow we know that fly past and also bans will be done by the army personnel, and as well as there will be there will be warships that will be doing formations at seas, and we see that Air Force will also be conducting fly past from Thiruvananthapuram to Srinagar, and also from Kutch to Dibrugarh in Assam. Along with that, today we see that this kind of exchange of words is taking place where they are appreciating each other's effort in order to not only maintain the lockdown but also to carry on with the efforts as we are heading towards the third phase of the lockdown, and we never know how long will this battle continue against the spread of COVID-19. On the other hand, we see that there are not only vote of thanks, but also there are other exchange of sweets, fruits, and also important kits that is taking place between. We'll take some nata from this person who is speaking right now. कि हम अपने आप को एक वॉरियर कहलवाएं, लेकिन हमें कहना भी पड़ेगा उन सभी लोगों को कि आप भी वॉरियर हो, क्योंकि आप भी लॉकडाउन में अपने घर छोड़ के 130 करोड़ देश के लोगों के लिए अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज है जो अदा कर रहे हो। तो इसी कड़ी में आज हमने सबसे पहला डिसीजन ये लिया कि हम सभी ने मिल के बातचीत करके आपस में कि हम पहले दिल्ली पुलिस का जो है सम्मान करेंगे। दिल्ली पुलिस ने पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमारे हर एक हेल्थ केयर वर्कर को फुल्ली सपोर्ट किया है। हमने कभी भी मैंने इंडिविजुअली कभी भी नहीं सुना कि दिल्ली पुलिस ने किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के साथ कुछ भी हमारे साथ मतलब कुछ भी हुआ है। तो हम ये भी एक संदेश देना चाहते हैं उन तमाम देशवासियों को कि दिल्ली पुलिस से आप सीखें। हाँ जी, इमीडिएटली हेल्प किया, दिल्ली पुलिस से आप सीखें, इसको अपनी अपनी स्टेट में कैरी आउट कराएं, और तमाम जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं वो भी सम्मान लेते हैं तो सम्मान दे भी, और किसको सबसे पहले उन सभी तमाम उन्हीं जैसे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, सीआरपीएफ के जवान, उन तमाम लोगों के पास जाएं थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जैसे आज हम कर रहे हैं, और उनका ज़रूर मान सम्मान करें कैसे ना कैसे करके। तो ये हमारी अपील। These are the kind words that are being said by the doctors fraternity over here, gathered out here in Hauzkhas police station for the police personnel. We have heard the police personnel also say, reciprocating in the same manner. We believe that they have constantly raised the issue of kind of ostracization that doctors have faced, and the immediate rescue that has taken place from the police's side, where they had come and not only showed them support, but also asked other people who have ostracized them to refrain from such activities. So we believe that police is not only helping these people out, but also helping the entire nation out by maintaining law and order, by maintaining that the strict lockdown is in force, and also okay, so there had been an exchange of small jokes over here as well. So this is the kind of exchanges that is taking place right now between the police officials and as well as the doctors out here. मतलब इंस्टीट्यूट ने नहीं डिसाइड किया, हमने बोला कि हम सबसे पहले आगे रहेंगे, इसलिए
Well, these are the latest images now coming in from the DCP's office in Hauzkhas. Several such measures are essentially being taken across the country where essentially the COVID warriors are being thanked. This is an initiative that has been taken to ensure several of our COVID warriors here in the national capital, like those doctors at AIIMS and several other hospitals who have been working day and night. Remember, this comes just a day before when Indian Army as well as compliance maintain करके चल रहा है because of सभी लोगों की पूरी दिल्ली ने रक्तदान किया क्योंकि उसका नारा ही था कि दिल्ली करेगी रक्तदान, तो दिल्ली ने एक्चुअली में रक्तदान किया। वो जो इतना बड़ा कैंप हुआ उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया, अगर वो ना होता तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। जो ब्लड कैंसर के मरीज हैं, जो ऐसे मरीज हैं जिनको रोज इतनी जरूरत पड़ती है, उन सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। और जो आज दिल्ली पुलिस सबके सामने खड़ी होकर सड़कों पे जो लोगों को समझा रही है, रोक रही है, लॉकडाउन का पालन करवा रही है, क्योंकि हमारे अस्पतालों की हालत सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के हाथ में एक डंडे से भी ये काम जो है हो सकता है, लेकिन अस्पतालों में अगर बात पहुंच गई, लोगों में इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा फैल गया तो अस्पतालों के ऊपर ये बोझ आएगा। तो अस्पताल हमारे उनके लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी और वो देश के लिए भी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वो जो उसका जी उसके प्रिवेंशन का जो आप इतने अच्छे से कर रहे हैं, लोगों को, बूढ़े लोगों को दवाई पहुंचा रहे हैं, भूखे लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, इसकी मिसाल कहीं दूसरी दुनिया में कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको, जो इतना बड़ा आपने। चीफ मेडिकल ऑफिसर है सर डॉक्टर मुकेश नागर सफदरजंग से, मेडिकल ओंकोलॉजी। थैंक यू फॉर कमिंग। हम लोग वही बात कर रहे थे कि इट इज़ अ प्रिविलेज टू होस्ट ऑल ऑफ यू। जब मुझे बताया गया कि सम ऑफ यू वांटेड टू कम हियर, वी वर वेरी ग्रेटफुल दैट यू नो आपका जो पीसफुलनेस और जो आपने पूरा लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखा है, वो इसको रोकने में उतना ही सहायक है जितना हम लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उतना ही सहायक ये आप लोगों का प्रयास है जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे खड़े हुए हैं, लोगों को रोक रहे हैं। ये बहुत ही एनकरेज करने वाला है और ये आपके इसके लिए बहुत ही बहुत बधाई के पात्र। हाँ, आपके लिए बहुत बहुत आभारी है। उत्साह की सीमा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक है, मैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट सीनियर साइंटिस्ट हूँ और डॉक्टर अमरिंदर नंदी, डॉक्टर विजय और सभी के साथ यहाँ आने का सौभाग्य मिला। तो मैं इतना उत्साहित था कि आज मैंने स्वयं एक खाकी पहनने का प्रयास किया। इस खाकी के सम्मान में, वैसे ये इतना सस्ता सौदा नहीं है, ये बड़ा त्याग, बलिदान और बड़े कर्तव्यपरायण से ये सीने पर आती है, लेकिन हाँ एक सकारात्मक नकल करने की कोशिश की है। और आप सभी को जय हिंद कहते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि जब पुलिस का ख्याल मन में आता है तो गर्व की अभिभूत होती है। और जब पुलिस के विषय में 3 विषय जो आते हैं दिमाग में, वो आते हैं, वो आता है कि पुलिस रिफॉर्म का। लेकिन मैं बड़े गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं, पुलिस ने अपने रिफॉर्म के विषय में कभी ज्यादा नहीं सोचा, केवल 2 विषयों में सोचा है, एक केवल परफॉर्म और दूसरा यूनिफॉर्म। तो अपने वो जो शासन और प्रशासन से जो होता है रिफॉर्म, उसके बारे में केवल 2 चीजें सोची हैं, वो है कैसे समाज में परफॉर्म करना है और कैसे अपनी वर्दी, क्या मेरी वर्दी ठीक है, वो कैसे यूनिफॉर्म के विषय में बात करता है। तो 2-3 कविताएं आप लोग के मद्देनजर आपको समर्पित करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर विजय, डॉक्टर अमरिंदर और मेरे साथियों से, सभी जितने भी चिकित्सक हैं, जितने परिचारिकाएं हैं, जितने भी ब्रदर्स हैं, जितने सिस्टर्स हैं, जितने शोध छात्र हैं, उनकी तरफ से कुछ लेखनी से प्रयास है, आप सभी को समर्पित है कि दिखता नहीं है आंखों से, दिखता नहीं है आंखों से ये शत्रु बड़ा ही बौना है, दिखता नहीं है आंखों से ये शत्रु बड़ा ही बौना है, प्रवासी इस घुसपैठिए का रूप बड़ा ही घिनौना है, ध्यान रखें कुछ बातों का और धैर्य हमें नहीं खोना है, हर 20 मिनट में 20 सेकंड तक अपने मुंह और हाथों को धोना है। कुछ दिन की दूरी भी हमें दूर नहीं कर पाएगी, मिल बैठेंगे फिर वैसे ही जब ये बला छू मंतर हो जाएगी।
और आप दिल्ली पुलिस के लिए मैंने आज खास तौर से ये कविताएं लिखी हैं। शौर्य की गाथा है जिसमें है कथा बलिदान की, शौर्य की गाथा है जिसमें है कथा बलिदान की, नमन है इस खाकी को क्योंकि ये खाकी है हिंदुस्तान की, ये खाकी है हिंदुस्तान की। शांति सेवा न्याय की त्याग के अध्याय की, शांति सेवा न्याय की त्याग के अध्याय की, शत्रु के संहार की और मित्र के पर्याय की, आन की और बान की, निज गौरव राष्ट्रगान की, कर्तव्य पथ पर है अडिग गाथा है संविधान की, नमन है इस खाकी क्योंकि ये खाकी है हिंदुस्तान की। मैं पुलिस हूं, मेरी अब यही पहचान है। हम लोगों ने देखा है पिछले विगत 4 महीनों से शायद ठीक से खाने का पता नहीं है, घर जाने का पता नहीं है। बड़े मार्मिक प्रसंग भी टीवी पे देखे कि बेटियां, बच्चे, भाई बहन, माँ बाप कैसे एक दूसरे का, अपने बच्चों का चेहरा देखने के लिए भी तरस रहे हैं। लेकिन आप लोग निरंतर कर रहे हैं, शायद ठीक से वर्दी भी बदलने का समय नहीं मिल रहा है। मैं पुलिस हूं, अब मेरी यही पहचान है। मैं पुलिस हूं, अब मेरी यही पहचान है। मेरी वर्दी पर अब बस सिर्फ पसीने का निशान है, मेरी वर्दी पर अब बस पसीने का निशान है। न खाने की फुर्सत है, न सोने का विधान है, आरोग्य की चिंता है सबकी और खुद की हथेली पे जान है निश्चिंत फिर भी इस वक्त में जबकि संकट में हिंदुस्तान है, क्योंकि देश की रक्षा में तत्पर चौराहे पर पुलिस का जवान है विदित हमें कि जन सेवा में तुमने कितने अश्रु बहाए हैं, है विदित हमें कि जन सेवा में तुमने कितने अश्रु बहाए हैं। ऋणी हैं हम सभी तुम्हारे, बस तुम्हें ये बताने आए हैं, मानवता की सेवा में निज तुमने कितने कष्ट उठाए हैं। जिनके पथ में अगिनत कांटे कितनी ही बाधाएं हैं, बगिया के ये फूल जो हम चुन चुन करके लाए हैं। ऋणी हैं हम सभी तुम्हारे, ये तुम्हें बताने आए हैं, नमन करो स्वीकार हमारा, हम फूलों की माला लाए हैं। विदित है हमें कि जन सेवा में तुमने कितने अश्रु बहाए। आपके हम सभी ऋणी हैं और आपने सभी भूमिकाओं में न केवल एक शांति सेवा न्याय को स्थापित करने में, बल्कि आरोग्य को भी, अनुशासन को भी सुनिश्चित करने में अपने कर्तव्य पथ की पराकाष्ठा को पूर्ण करते हुए, मुझे लगता है कि शब्दों में शायद इस भाव को बयां करना मुश्किल है। भाव भारी हैं। इस हृदय की सीमाओं से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आरोग्य चिकित्सकों का, परिचायिकाओं का, शोधकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का, संपूर्ण भारतवर्ष की तरफ से हम आपको नमन करते हैं, सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ली है। मैं एम्स में पूर्व अध्यक्ष आरडी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का हूँ और मैं ये आज आपके सबके सामने ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर जो सेलिब्रिटीज अवार्ड होते हैं, जिसमें ऑस्कर अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, अगर वो आज मैं एक अपील पूरे हिंदुस्तान से करना चाहता हूं कि अगर ये अवार्ड सेलिब्रिटीज की बजाय पुलिस अधिकारियों और डॉक्टर्स को दिया जाए तो सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि अभी जितने भी वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हों, चाहे पुलिस वर्कर्स हों और चाहे क्लीनर्स भी हों, उन सभी ने इतना ज़्यादा योगदान दे दिया है। तो अभी 2021 के अगर अवार्ड होते हैं तो बेस्ट यही रहेगा कि इन सबको मिला जाए। यही आज के सुपर हीरोज हैं हमारे। एक गाना छोटा सा है जो याद आ रहा है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। Stay home. We are there 24/7 for you guys only. So please stay home. That's it. एक सफदरजंग की तरफ से कुछ फेस शील्ड और एक सैनिटाइजर है, तो एक एक को हम सर भाई, तो आपको सर एक सर 1 सेकंड सर, जो आप सफदरजंग की तरफ से पीछे हो यार।